جو غریبوں کو تخت و تاج دیتا ہے وہ اسے کل مانگے وہ آج دیتا ہے، جو تیرے اور میرے گیتوں کو پرستش کرنے کے لیے ہمیں آواز دیتا ہے، وہ جو پرندوں کو اڑنے کے لیے پرواز دیتا ہے، العارفین وہ جو انبیاء مرسلین، وہ جو قدوس قدیم شاہ عظیم رب العالمین یہوہ کریم پاک خدا ہے، وہ جو ہمیں مشکلات ہے قدرت معجزات ہے مالک کائنات ہے بناتا دن اور رات ہے، اسی کے دم سے ہماری بات ہے ورنہ ہماری کیا اوقات ہے، وہ جو ہمیں ساتھ ساتھ ہے کیونکہ عجیب اس کی ہر ایک بات ہے، وہ جو سچائی میں کھڑا ہے اور ازل سے ذبح کیا اور بھرا ہے، جس نے ہر ایک دکھ ہماری خاطر جڑا ہے، جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا ہے، جو ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے، وہی فرماتا ہے ایمان رکھو جہاں دو یا تین اس کے نام میں اکٹھے ہو وہ اپنے اور جو تمہارے درمیان آمد کھڑا ہے اسی نے تو اپنے پاک مردوں سے تمہیں بھرا ہے، وہ جو نور کے اوپر شاخ کی طرح اوڑھتا ہے، وہ جو طوفانوں کے رخوں کو موڑتا ہے، وہ جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، ابلیس بھی جس کا نام سن کر دوڑتا ہے، وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جو فرعون حنون کا خدا نوح کا خدا ابراہم اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہے، وہ جو موسیٰ ہارون یشوع کا خدا ہے، وہ جو سنکت سامردان سلیمان کا خدا ہے، وہ جو ایلیا الیشا یسایہ یرمیا حزقیل دانیل ہوسیہ یوائل عموس عبدیہ یونا میکا ناہوم حبقوق صفنیہ حجی زکریا ملاکی کا خدا ہے، وہ جو قرآن کے پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کا خدا ہے، وہ جو متی مرکز لوکا یوحنا پترس رسول پالوس رسول سلاس رسول حلفی کا برتلمائی کا یہودا کا یعقوب کا تدی کا توما کا فلپس کا اندریاس کا اور یوحنا عارف کا خدا ہے، وہ جو تمام تر نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے رسولوں کا خدا ہے، وہ جو آسمان سورج چاند ستاروں فضاؤں ہواؤں کہکشاؤں پہاڑوں چٹانوں چوٹیوں چشموں دریاؤں سمندروں زمین کی مٹی سے آدم اور آدم کی پسلی سے ہوا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو چلانے والا خدا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ یسوع کے گرد گھومتی ہے، یسوع آسمان زمین نبیوں رسولوں فرشتوں سمیت تمام تر مخلوقات کا خدائے معبود ہے، یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک برگزیدہ اور ایماندار جس کا منتظر تھا اور ہے اور رہے گا، ہاللیلویا ہاللیلویا، وہ جس کا منتظر تھا اور ہے اور رہے گا، خداوند یسوع المسیح ناصری میرے عزیزو آپ کی اور میری زندگیوں میں جو عجیب اور جلالی طور پر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، الفا اور اومیگا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، راحت اور زندگی میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، حکمت کا چشمہ میں ہوں، نجات کا دروازہ میں ہوں، داؤد کی اثر اور نسل میں ہوں، صبح کا روشن ستارہ میں ہوں، اور جو موسیٰ سے جھاڑی میں کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں، اسی کے زندہ ببرکت جلالی لاسانی لافانی لا تبدیل لا متبدل ذو برتر سب سے عظیم سب سے اعلیٰ سب سے سندر سب سے خوبصورت یسوع نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے پیار بھرا محبت بھرا عقیدت بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو معذرت کریں گے، آپ سب سے سوری کریں گے، آپ لوگوں نے اتنا انتظار کیا، تو اصل وجہ یہ تھی کہ ہماری کچھ ٹیم کے لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم جلدی نہیں پہنچ سکے، پھر بھائی خالد نے بھی ایک چھوٹی سی مجھے پرابلم بتائی تھی، ساؤنڈ والے نے تھوڑا سا مسئلہ کر دیا ہے، ساؤنڈ کا رینج بھی ہو رہا، تھوڑے سے پھر ہم بھی لوز ہو گئے، ہم نے کہا چلے جیسے ارینجمنٹ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو پھر ہم نکلتے ہیں، لیکن تھینک یو ویری مچ کہ آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، اپنے لیے زوردار تعلیم جاری شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں نے موقع دیا، بھائی خالد کا بیٹی آسما کا فیملی کا میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، تو شکر گزاری کے تعلق سے آئے میرے صاحب بھائی مقدس کے اندر سے دیکھیے گا، پہلا تسلیمیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16 17
और 18 आयत। पहला तस्लीमियों उसका 5वां बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत। अगर कोई तिलावत करना चाहता है खुदा का खादम प्लीज। पहला तस्सलुनीकियों उसका 16 बाब 5वां बाब और 16 आयत में हुक्म है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन, प्रेज हालेलुया। खुदा का शुक्र। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर अभी जो हमने पढ़ा, हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो। और मेरे अजीजों, कितनी बातों में हमें यहाँ पर खुदा ने कहा है कि शुक्रगुजारी करनी है। 5 बातों में, 10 बातों में, 100 बातों में, 1000 बातों में, कितनी बातों में कहा है? हाँ जी, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। बाइबल मुकद्दस ये तालीम हमें दे रही है शुक्रगुजारी के तलक से। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब कोई शुक्रगुजारी करता है वो क्या करता है? म्यूजिक बजाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं म्यूजिक कैसे बजाता है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो कोई शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की तमजीद करता है। तमजीद का मतलब कि वो खुदा की प्रस्तिश करता है। अब प्रस्तिश जो है वो बगैर साजों के नहीं होती। हालेलुया। प्रस्तिश जो है, तमजीद जो है वो बगैर साजों के हमें मजा नहीं आता। हम वैसे सोलो भी गाते हैं, लेकिन जब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब गाने बजाने वाले मिल जाते हैं तब खुदा का अबर छाता है। तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करो। और शुक्रगुजारी के तल्लक से मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं, I have to great thankful to you in the great assembly कि ऐ खुदा देख मैं बड़े मजमा में तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करूंगा। और आज भाई खालिद ने, बेटी आसमा ने इस बात को मुनासिब जाना कि जैसे खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं कि मैं बड़े मजमा में ऐ खुदा तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े मजमा के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, हमें अपने बहन भाई चाहिए होते हैं, हमें अहले कलीसिया के लोग चाहिए होते हैं, हमें हमारे रिलेटिव्स चाहिए होते हैं, जिस मकसद के लिए हम बड़ी शुक्रगुजारी कर सके, जो हम समझ सके कि हमें जो है एक बड़ी शुक्रगुजारी करनी है एक बड़े मजमा के अंदर। और बड़े मजमा को आज इस फैमिली ने अपने घर के अंदर खुदा के खादमों को इकट्ठा किया, अपने अहले खानदान को इकट्ठा किया, अपने बहन भाइयों को बुलाया और कहा आओ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और मेरे अजीजों, कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि क्या ही भली बात है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। जब हम चाहते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घराने के अंदर कोई अच्छा हो, कोई भला हो, तो लिखा है कि क्या ही भली बात है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। जब हम चाहते हैं हमारी भलाई हो तो फिर हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी करने के साथ बेदार रहो। यानी कि बेदारी का मतलब ये है जागते रहना, शुक्रगुजारी के साथ साथ क्या करना है? बेदार रहना है, जागते रहना है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ खुदा ने आपको मुहैया किया है उसके लिए तो आप शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन आप इस बात के लिए बेदार रहे, इस बात के लिए जागते रहे कि जो कुछ आपके पास नहीं भी है उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप खुदा के ना शुक्र ना हो, बल्कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें, और जो कुछ नहीं भी है ईमान रख के उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें।
और शुक्रगुजारी के तल्लक से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा सबसे पहली जो शुक्रगुजारी है, जो सबसे पहले शुक्रगुजारी की दुआ है, जो सबसे पहले शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, जो सबसे पहले शुक्रगुजारी का हदिया है, जो सबसे पहले शुक्रगुजारी का नजराना है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो काइन और हाबिल खुदा के हुजूर लेकर। काइन और हाबिल, खुदा यहोवा पाक खुदा ने जब आदम को बागे अदन से निकाला तो खुदा ने जब उनको औलाद दी तो दो बेटे काइन और हाबिल और खुदा के हुजूर दोनों अपनी अपनी शुक्रगुजारी लेकर आए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने छोटे की कुर्बानी को कबूल किया, उसकी शुक्रगुजारी को कबूल किया। हाबिल की शुक्रगुजारी खुदा की नजर में मकबूल ठहरी, लेकिन काइन की शुक्रगुजारी खुदा ने कबूल नहीं की। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि जो हाबिल खुदा के हुजूर अपना हदिया नजराना शुक्राना लेकर आया, वो अच्छा था, वो दिल से था, वो पूरी अक्ल और दनाई और हिकमत के साथ था, वो पूरी शुक्रगुजारी थी जो खुदा के हुजूर वो लेकर आया। अच्छी अच्छी चीजें वो खुदा के हुजूर लेकर आया और उसने खुदा के हुजूर वो नजर की और खुदा ने उसकी शुक्रगुजारी को कबूल किया। लेकिन काइन जो लेकर आया वो गली सड़ी चीजें लेकर आया। वो ऐसे कर रहा था जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको शुक्रगुजारी के तल्लक से बताना चाहता हूँ कि जब हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं या लोगों को दिखाने के लिए या और किसी बात की वजह से, तो वो खुदा कबूल नहीं करता। खुदा कबूल करता है कि आप अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अक्ल से, अपनी पूरी हिकमत से, अपने पूरे फहम से खुदा की शुक्रगुजारी करे। जैसा कि आज इस घराने ने मुनासिब जाना, चंद दिन पहले एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के अंदर भाई खालिद, भाई बॉबी थे जो बाइक पर जा रहे थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजीजों, लिखा है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो सिर्फ इस बात के लिए ना करें कि साडा एक्सीडेंट होया शुक्र, नो, बल्कि इस बात के लिए कि खुदा ने आपकी हिफाजत की, आपको प्रोटेक्ट किया, खुदा के निगहबान फरिश्ते आपके साथ रहे और उन्होंने आपको किसी बड़े हादसात के होने से बचाया, महफूज किया। आज भाई खालिद ने भी इस मकसद के तहत अपने घर के अंदर शुक्रगुजारी करवाई कि ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने मुझे सही सलामत रखा, तंदुरुस्ती दी। एक मेजर एक्सीडेंट में भी खुदावन तूने अपना जोर बाजू बढ़ाकर मुझे महफूज किया, मेरे भाई बॉबी को महफूज किया। इस बात के लिए ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीजो, शुक्रगुजारी जो है, हम इंसान होते हुए कभी कभार नाशुक्री भी कर जाते हैं। हम इंसान होते हुए कभी कभी नाशुक्री भी कर जाते हैं। एक दफा का जिक्र है, मैं एक दफा अपने एक दोस्त के यहाँ गया, उसने इबादत रखवाई। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा आपने किस मकसद की इबादत रखाई? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपने घर में शुक्रगुजारी की इबादत रखवाई। तो मैंने वजह पूछी, मैंने कहा आपने किस वजह से शुक्रगुजारी करवाई? तो उसने कोई बड़े काम नहीं मुझे बताए, कोई बड़े मौजज़ात नहीं बताए, बल्कि ये है कि खुदा ने मुझे, मेरी फैमिली को हमेशा से महफूज रखा है। हालेलुया। तो अजीजों, हमें हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी के तल्लक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ये कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आसमान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि ऐ खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमें बुलंदियों पर मुकाम दिया है। आसमान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आसमान के ऊपर सितारे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और वो कहते हैं ऐ खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने
तूने हमें आसमान पर जड़कर आसमान की रौनक को दुबाला कर दिया है, आसमान को खूबसूरत कर दिया है। सूरज खुदा की शुक्रगुजारी करता है और सूरज कहता है, ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे दिन पर हुक्मरान किया है, तूने मेरे अंदर एक वो रोशनी रखी है जो लोगों को गरमाइश देती है, लोगों को तपश देती है। चांद अपनी ठंडी रोशनी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है और वो कहता है, ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने मुझे रात पर हुक्मरान किया है ताकि मैं तेरे लोगों को ठंडी रोशनी दे सकूं, तेरे लोगों को रात के वक्त भी रोशनी दे सकूं। मेरे अजीजों, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे ये सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आसमान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आसमान के अंदर से निकलते हुए बादल खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बादल के अंदर से निकलती हुई बारिश खुदा की शुक्रगुजारी करती है, बारिश के अंदर से निकलते हुए कतरे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, कतरों के अंदर से निकलती हुई एक एक बूंद खुदा की शुक्रगुजारी करती है। नबातात खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हशरात खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जवादात खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इंसान होते हुए कभी कभी नाशुक्री कर जाते हैं। ये फूल अपनी खुशबू के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, फल अपने रस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हर एक चीज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक दफा का जिक्र है, 3 शख्स थे और डेली दुआ करते थे, डेली दुआ करते थे, खुदा उमदा सन अमीर कर दे, अमीर कर दे, अमीर कर दे। खुदा ने एक दिन सोनी दी उन्होंने, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, जाओ इनकी दुआ सुनो, ये क्या कह रहे हैं, इनकी जो भी मुराद है पूरी कर। और वो अपनी दुआ में मगन। खुदा का फरिश्ता एक बंदे के पास आया, पहले के पास, उन्होंने कहा हाँ भाई खुदा ने भेजा, दस की चाहना है। उसने कहा मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी के हालात बदल जाए, मेरे घर के हालात बदल जाए, मेरी गुर्बत चली जाए, मेरी परेशानियां चली जाए। तो खुदा के फरिश्ते ने क्या किया, उसने ऐसे इशारा किया उंगली के साथ, और जिस जिस चीज की तरफ उसने इशारा किया वो चीजें सोने की बन गई। उन्होंने कहा बेच, खा पी के अपनी गुर्बत दूर कर। उन्हें खुदा का शुक्र अदा किया, सजदे से हो गया, दुआ की। फिर फरिश्ता दूसरे शख्स के पास गया, उसको जाकर कहा हाँ तू बता तू क्या चाहता है। उसने कहा जी मैं भी अमीर होना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी अपनी गुर्बत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर से निकलना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने फिर अपनी उंगली के इशारे के साथ इशारा किया, कुर्सी, मेज, टेबल, फर्नीचर सोने के बनते गए। उन्होंने कहा बेचो, खाओ पियो, मजा करो। उस शख्स ने खुदा की शुक्रगुजारी की, सजदे में हो गया, दुआ करना शुरू की और कहा खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता। फिर जब तीसरे के पास गया तो तीसरे की भी वही रिक्वायर्ड थी, वो भी कहता कि मैं भी अमीर होना चाहता हूँ, मैं भी अपनी गुर्बत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी प्रॉब्लम के अंदर से निकलना चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने फिर अपनी उंगली के साथ इशारा किया और चीजें सोने की बनती गई। लेकिन वो शख्स नाशुक्रा चुपचाप खड़ा रहा। अब फरिश्ते ने जब उसकी तरफ देखा कि इसकी सारी चीजें मैंने सोने की बना दी, बाकी दो ने तो शुक्रगुजारी की है लेकिन इसने शुक्रगुजारी क्यों नहीं की। फरिश्ते ने उस शख्स से पूछा आप क्यों चुप खड़े हैं। उसने कहा मैं सिर्फ इस बात की वजह से चुप खड़ा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो उंगली आप ऐसे ऐसे करके चीजें सोने की बनाई जा रहे हैं, सोना तो बाद में ले लूंगा, अगर आप ये अपनी उंगली काट कर दे दें मुझे तो ये कैसा अच्छा हो। देख ले इंसान की सोच, देख ले। वो फरिश्ते को कह रहा अपनी उंगली काट कर दे दो जिसके साथ तुम सोने की चीजें बना रहे हो। उसने शुक्रगुजारी नहीं की कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मेरी फरियाद को सुन लिया, अपने फरिश्ते को भेजा और ताकि मैं गुर्बत से निकल सकूं, मैं परेशानियों से निकल सकूं, मैं टेंशनों से निकल सकूं। लेकिन उसने लालच करके अपने अंदर और बातें सोच ली कि ये उंगली मुझे मिल जाए तो मैं ये चीजें खुद तैयार करता जाऊं, मैं और मांगता हूं।
लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्रगुजारी जो है खुदा चाहता है हम अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी सेहत के लिए, आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, मेरे अजीजों शुक्रगुजारी किया करें खुदा की। हर एक दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी मिसालें, बहुत सारी ऐसी नबियों की जिंदगी के अंदर से, बहुत सारे रसूलों की जिंदगी से लेसन मिलते हैं जो शुक्रगुजारी से भरे पड़े। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आप आज के कलाम के वसीला से ये बात सीख रहे हैं तो सुने गौर से कि शुक्रगुजारी जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर अजीब और जलाली काम खुदा के लेकर आती है। हालेलुया। तो आपको भी अपनी लाइफ के अंदर दिन चाहे बुरे हो, जिन दिन चाहे कैसे क्यों ना गुजरे हो, मुश्किलों, टेंशनों, परेशानियों के अंदर से गुजरे हो, लेकिन जब आप खुदा को ये बात कह देते हैं कि ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, चाहे दिन बुरे हैं, हालात बुरे हैं, मैं गुर्बत के अंदर भी हूँ, लेकिन ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने मुझे सही सलामत रखा है, हाथ पांव हर एक चीज सही सलामत रखे। आखिरी बात करके कलाम को क्लोज करूंगा। एक शख्स था, वो खुदकुशी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग मिला, तो उस बुजुर्ग ने उस नौजवान से पूछा कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा तू मरने क्यों जा रहा है? उन्होंने कहा जी मेरे को है ही कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे दिन बहुत बुरे हैं, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मैं इसलिए इस गुर्बत से भागता अपनी जान देने जा रहा हूँ, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा इधर आओ बेटा मेरे पास बैठ। जब उसने उसको अपने पास बिठा लिया तो उसने कहा तेरे पास कुछ नहीं है? उन्होंने कहा जी नहीं मेरे को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा चलो फिर एक काम करने हैं, मैं तेन पैसे दिती जाना तो मैंने चीज़ा दिती जा। बाबे ने कहा मैं तेन पैसे दिती जाना तो मैंने चीज़ा दिती जा। उन्होंने कहा बाबा जी मेरे को है ही कुछ नहीं तो मैं तुम की दिया। उन्होंने कहा अगर तेन 10 लाख रुपया दिता जाए तो तू अपनी अखा मैनू दे देंगे? उन्होंने कहा मैं अखा तुम दे देंगे, वेखा कि? उन्होंने कहा चलो अखा भी रहन दे, तेन 10 लाख रुपया देना अपने हाथ मैनू दे दे। उन्होंने कहा बाबा जी हाथ तुम दे दिते तो मैं खावांगा कद नहीं। उन्होंने कहा चलो हाथ भी रहन दे, 10 लाख देना अपने पैर कट के दे दे। उन्होंने कहा जी बाबा जी पैर तुम दे दिते तो मैं टुरा फिर लगे। उन्होंने कहा फिर चलिया लखा की प्राप्ति लैके लगा फिरना है, ये नहीं कहना तेरे को कुछ नहीं है। तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आप अपनी आंखों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने पाँव के लिए, अपनी जुबान के लिए, अपने कानों के लिए, हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। तो आज आपके लिए यही लेसन है, हासिल कलाम यही है कि अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी रखें। एक ना एक दिन खुदा आपकी शुक्रगुजारी सुनकर आपके हालातों को बेहतर करेगा। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू।